friends, today this is the chemistry online class, and in today's lecture we will discuss about the optical isomerism. This is the part that we have to discuss. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमको क्या क्या डिस्कस करना है? These are the basic terms related to that. First is called ordinary light. Second is called plane polarized light. Next we have to discuss the chiral carbon atom or asymmetric carbon atom or asymmetric center in a compound. Then next term we have to discuss the optical activity. Then two forms we have to discuss. One is called dextro and leo rotatory substance. Then mixture of that two called the racemic mixture, and last is called the enantiomer. And after that, during that we will discuss one two examples to locate the optical activity of the compound. So this we have to continue, or this we have to complete or cover this point in today's lecture. So let us start with optical isomerism. हम start करेंगे ordinary lights. First we will discuss about the ordinary light. Now ordinary light means the light containing the different wavelength, or the light of different wavelength is said to be the ordinary light. Or in other words, we can say that the ordinary light in which the oscillation of magnetic and electric field takes place in different planes, but that planes are perpendicular to the direction of light. What is ordinary light? Ordinary light is that light in which the oscillation of magnetic and electric field takes place in a direction perpendicular to the direction of propagation of light, and they are propagated in a different place. So that is nothing but it is called the ordinary light. If we will take the cross section of this ordinary light, so we will get the diagram like this. This is the ordinary light. Second light is called the plane polarized light. Now see that how that plane polarized is obtained. Plane polarized light is obtained when the ordinary light passes through the Nicol prism. Nicol prism means two glass prism inverted on each other like this. This is the first prism, this is the second prism. They are joined with each other to make a square. See, this become a square, and they are joined each other by the Canada blossom. उन दोनों को हम किससे join करते हैं? Canada blossom से. And when the ordinary light is passed through that Nicol prism, we get such type of light. This light is nothing but it is said to be the plane polarized light. Means any ordinary light. What is the condition for the ordinary light? That in case of the ordinary light, the oscillation of magnetic and electric field takes place in a different planes, or they are oscillating in a different planes perpendicular to the direction of propagation of light. But when this light, ordinary light, passes through the Nicol prism, it gets converted to the plane polarized light, which is abbreviated as PPL, plane polarized light. What is the definition of plane polarized light? Plane polarized light is that light in which, again, the oscillation of magnetic and electric field takes place, but now they are oscillates only in one plane, and that plane is again perpendicular to the direction of propagation of the light. यानी दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? यहाँ डिफरेंट प्लेन्स में ऑसिलेशन होगा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड इन केस ऑफ दिस PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द oscillation of electric and magnetic field takes place in the one plane, single plane, but that in both the cases that plane
is perpendicular to the direction of propagation of light. This is all about the ordinary and the plane polarized light. Now this optical isomerism, we are discussing today the optical isomerism. This optical isomerism is nothing but it is a part of stereo isomerism. See, it is a part of stereo isomerism. अब आइसोमेरिज्म अगर वर्ड हमने सुना तो हमको क्या दिखाई देता है, क्या ऑब्जर्व होता है, क्या स्ट्राइक होता है? That it is a property in which compound contains the same molecular formula but different structural formula. Such property is known as the isomerism. And these are the different types of, there are the different types of isomerism, in which one of the isomerism is said to be the stereoisomerism. And what is by the stereoisomerism? In case of the stereoisomerism, see, we can consider that the molecular and structural formula are the same, but what is difference? The arrangement of the atoms or group of atoms around the central atom is different. जो हम सेंट्रल एटम कंसिडर करेंगे, उस सेंट्रल एटम से अराउंड में जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रहेंगे, उनकी अरेंजमेंट क्या रहेंगी? दोनों केस में डिफरेंट रहेंगी. एंड हेंस दैट आइसोमेरिज्म इज सेड टू बी द स्टेरियो आइसोमेरिज्म. एंड out of that we will discuss today that is called the optical isomerism. So we can say that this optical isomerism is a kind of stereo isomerism. Kind means is a type of stereo isomerism. अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर हमको कंसीडर करना है तो we have to consider this light that we already discussed, plane polarized light. ये plane polarized light हमको कंसीडर करना है. पहले हम ये डिस्कस करेंगे तो which compound contains this optical activity. कौन कौन से कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी और क्यों, कब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंपाउंड में क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये पहले हम डिस्कस करेंगे. एंड देन वी डिस्कस दिस पॉइंट. नाउ सी द फर्स्ट वन, दैट दो पार्ट हमको डिस्कस करना है. वन इज कॉल्ड सिमेट्रिक कंपाउंड एंड असिमेट्रिक कंपाउंड. Unsymmetric, symmetric and unsymmetric compounds. ये दो हम डिस्कस कर रहे हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने ये आपको बताया, दिस इज अ डस्टर. डस्टर कैसा है? इज अ सिमेट्रिकल इन नेचर, इज अ सिमेट्रिकल इन नेचर. इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, वर्टिकल सेक्शन लेंगे या द ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, तो उसमें क्या होता है? इट डिवाइड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स because it is a symmetry, it having the symmetry, and that's why we can say that this is a symmetrical compound. ये कैसा है? Symmetrical compound है. लेकिन अगर मैंने ये consider this is a hand, ये hand कैसा है? This is hand. अब देखो, it is not symmetrical in nature. ये symmetrical नहीं है. क्यों? क्योंकि एक साइड में thumb है, एक साइड में हमारा लास्ट the small finger है, तो it is not a symmetrical in nature. इसको अगर मैंने डिवाइड किया तो it divide into the two unequal parts, and that's why we can say that this is unsymmetrical in nature. ये कैसा है? unsymmetrical in nature. ये हम ऑब्जेक्ट के बारे में कह सकते हैं कि उसका अगर डिवाइड करने के बाद अगर दो अलग अलग पार्ट आ गए तो we can say that is unsymmetrical in nature. लेकिन अगर दो डिवाइड होने के बाद दो पार्ट अगर सेम आ गए तो we can say that it is symmetrical in nature. तो कंपाउंड में हमको ऐसे डिस्कस करना है, कंपाउंड में जो रहेगा कैसे डिसाइड करेंगे? हमको असिमेट्रिक सेंटर, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशलिटी क्या है? इट कंटेन्स अ कार्बन चेन, दैट इज अ कैटेनेशन. कार्बन स्केलेटन इज देयर. अब ये जो कार्बन स्केलेटन होता है उसमें जो कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कंपाउंड में प्रेजेंट है उसमें ऐसा कार्बन एटम हमको कंसीडर करना होगा दैट इज हैविंग द असिमेट्रिक सेंटर. तो ऐसे डिसाइड करेंगे. ऑब्जेक्ट के बारे में हम ऐसा बता सकते हैं कि इसको अगर डिवाइड किया दो पार्ट में तो अगर इक्वल है तो सिमेट्रिकल इन नेचर, अनइक्वल है दोनों पार्ट तो वी कैन से दैट इट इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर. This we can consider for the daily uses object. Daily uses object के लिए हम ऐसा कर सकते हैं. लेकिन अगर कंपाउंड की बात करेंगे
तो वहां हमको ये कंसीडर करना है असिमेट्रिक सेंटर, और वो जो असिमेट्रिक सेंटर रहेगा, कार्बन रहेगा, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ चिरल कार्बन एटम, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चिरैलिटी. Property is known as chirality. Chair, it's obtained from the Greek word called a chair. Chair means called hand. हमारे हैंड भी कैसे होते हैं देखो ना, दोनों हैंड देखो, ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, देखो अलग अलग है, ऐसा दोनों अलग है. अब अगर आपने लेफ्ट हैंड मेरे वाला देखा तो कैसे होगा? ये फिंगर ये साइड में और ये फिंगर ये साइड में, थंब. लेकिन यही अगर देखा तो ये फिंगर ये साइड में और ये फिंगर ये साइड में. मीन्स वी कैन से दैट ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है. ऐसा ही हमको ये प्रॉपर्टी में डिस्कस करना है, एंड दैट्स व्हाई दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चिरैलिटी. एंड द सेंटर, asymmetric center present in the compound, that is called the chiral carbon atom or chiral carbon atom. Pronunciation is different but meaning remains the same, and that property is called chirality. अब इसको कैसे डिसाइड करना है कंपाउंड में हम देखेंगे. We will consider one example. एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, that called as CH3 CHCl then CH2 CH3. ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है. ये कंपाउंड में कैसा है? CH3 CHCl CH2 and CH3, and we will give the number in that carbon atom called a 1 2 3 4. So given compound contains the 4 carbon atoms, and अब हमको यहाँ asymmetric center, or we can say that we have to discuss the chiral carbon atom, asymmetric center discuss करना. Now see here, कार्बन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे. कार्बन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे. अब कार्बन नंबर 1 जो है वो कहाँ कहाँ अटैच है? कितने कार्बन? देखो ये कार्बन नंबर 1 है, इट अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3. यानी हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे? कितने और कौन कौन से आइटम से वो पार्ट से अटैच है. हम ये 4 पार्ट ले रहे हैं, ए बी सी डी. पहला एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और चौथा कौन सा? ये जो कार्बन है, कार्बन अटैच टू दिस चेन, कंप्लीट चेन को अटैच है. तो क्या रहेगा? CHCl CH2 एंड दिस इज अ CH3. ये रहेगा, समझ गए? दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड अबाउट द फर्स्ट कार्बन, ठीक है. अब हम कार्बन नंबर 2 की तरफ जाएंगे. कार्बन नंबर 2 यानी दिस कार्बन आइटम. कार्बन नंबर 2 ये जो है कार्बन, दिस कार्बन अटैच टू दिस ग्रुप कॉल्ड CH3. यानी हमारा पहला ग्रुप कौन सा आएगा? हम ऐसा इसको कर सकते हैं, सी है. अब आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है. डी यानी कौन सा? ये कार्बन कहाँ अटैच है? हाइड्रोजन को. तीसरा कौन सा है? यहाँ Cl को अटैच है. और चौथा कौन सा? ये कार्बन किसको अटैच है? दिस ग्रुप को, कॉल्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. समझ गए? ये रहेगा. कार्बन नंबर 3 देखो, सी द कार्बन नंबर 3. कार्बन नंबर 3 कहाँ अटैच है? ये सारी चेन, कौन था? CH Cl एंड CH3. देखो CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ये चेन को अटैच है. और कहाँ अटैच है? इट अटैच टू 2 हाइड्रोजन एटम. यहाँ लिखना है, सॉरी ये यहाँ लिखना है. CHCl एंड देन CH3. यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा, लास्ट कौन सा रहेगा? दैट इज कॉल्ड CH3. सी एंड सी द कार्बन नंबर 4. इन केस ऑफ द कार्बन नंबर 4 एक चेन ये रहेगी, कंप्लीट चेन रहेगी, एग्जैक्टली अपोजिट टू द फर्स्ट वन. कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, these are the terminal carbon atom. They contain the same atom or group of atom attached to each other but in opposite side. देखो कैसे रहेगा. पहले इसमें कौन अटैच रहेगा? फिर अभी ये कार्बन को ये पूरी चेन रहेगी, कौन सी? CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है. ये रहेगा. देन 3 हाइड्रोजन रहेगा ऐसे. यू गेट दिस पॉइंट? नाउ सी हियर. अब ऑब्जर्व करो, कार्बन नंबर 1
हमको ऐसा कार्बन एटम कंसीडर, देखो इफ यू डिसाइड विच वन इज अ चिराल कार्बन एटम और असिमेट्रिक सेंटर इन अ कंपाउंड, तो हमको ऐसा कार्बन एटम कंसीडर करना है टू विच द 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर अटैच्ड। ये हमारी कंडीशन है और वी कैन से दैट दिस इज द डेफिनेशन, द कार्बन एटम टू विच the 4 different atoms or group of atoms are attached, that carbon atom is said to be the asymmetric carbon atom or a chiral carbon atom। अब हमको यहाँ ऑब्जर्व करना है कार्बन नंबर 1 में क्या है, 3 जो एटम्स है वो सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस इज नॉट अ asymmetric carbon atom or chiral carbon atom। इन केस ऑफ दिस कार्बन नंबर 2, हम कार्बन नंबर 3 की बात करेंगे। कार्बन नंबर 3 में कैसा है, these two groups are same different but these two hydrogen are the same, hence this is not a asymmetric carbon atom or chiral carbon atom। कार्बन नंबर 4 में ये डिफरेंट है but these 3 hydrogen atoms are same, hence this is not a chiral carbon atom। but now consider the carbon number 2। अब हम कार्बन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। क्या है कार्बन नंबर 2 में, ऑब्जर्व दैट which 4 groups or atoms are attached, CH3 group, hydrogen atom, chlorine atom and this group called ethyl group, CH2 and CH3। now tell me, in this case the groups are same or different? The groups are different, all the 4 groups or atoms are the different, and that's why according to the definition we can say that this carbon number 2 is a asymmetric carbon atom or this is the asymmetric center or this carbon atom is said to be the chiral carbon atom। it is a chiral carbon atom। क्यों रहेगा ऐसे? because to that carbon atom the 4 different atoms or group of atoms are attached and according to definition this carbon atom is said to be the chiral carbon atom। where the chiral carbon atom is present, that property, that compound contains the property called the chirality। मैंने बताया, ठीक है। now next, अब एक बार हमारे कंपाउंड में हमने डिसाइड किया कि इट कंटेन्स असिमेट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, इट इज असिमेट्रिक इन नेचर या इट इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर। ये अनसिमेट्रिकल है एंड कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है, अब इसको हम लिख के देखेंगे, देखो कैसा है। ये हमारा CH3 है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज Cl एंड दिस इज a CH2 and CH3। और इन अदर फैशन वी कैन राइट दिस लाइक दिस, this is the hydrogen, this is a Cl, this is a CH3 and this is a CH2 and CH3। what is the name of this compound? this compound is called a 2-chlorobutane। this is a 2-chlorobutane। ये हमने डिसाइड किया है। अब देखो ये कंपाउंड जो है and this carbon atom which is represented by this star, we can say that now we already discussed this carbon atom is a chiral carbon atom और asymmetric center है। and once the compound contains a asymmetric center, that compound is only having the property called the optical activity। उसी के पास कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब कैसे रहेगा हम देखेंगे। अब देखो द कंपाउंड, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ फिर उसके बाद इसका हम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके पहले अभी डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। This is a plane polarized light having the oscillations propagating or in a same plane, but that plane perpendicular to the direction of propagation of light। ये हमारा PPL है। The asymmetric compound, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन क्या है कि कंपाउंड में asymmetric सेंटर होना जरूरी है, जो इसे अभी हमने डिसाइड किया। यहाँ the compound which rotate this PPL on either side of the जैसे ये आपको कंसीडर करो, ये PPL है, दिख रहे हैं आपको, और जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए दैट रिप्रेजेंट द फिंगर्स। देखो अभी हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको रोटेट कर सकते हैं, 2 डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। कैसा?
एक तो क्लॉकवाइज, एक राइट हैंड साइड वाला और एक लेफ्ट हैंड साइड वाला, ऐसा रहेगा। आएगा मीन्स द सब्सटेंस which having the ability to rotate the plane polarized light on either direction, left or right, such property is said to be the optical isomerism or optical activity. That property is called the optical activity, and the substance is said to be the optical active in nature. That substance is said to be the optical active in nature. ये रहेगा। सो यहाँ हमने डिसाइड किया कि अगर उसको रोटेट करेंगे, अब रोटेट कैसे करेंगे, देखो कैसे होगा। अगर इसको राइट साइड रोटेट किया तो हमको ऐसी डायग्राम मिलेगी, और लेफ्ट साइड अगर रोटेट किया तो ये ऐसी डायग्राम मिलेगी। ये ऐसी डायग्राम मिलेगी। राइट साइड में अगर लिया तो ऐसी डायग्राम, लेफ्ट साइड में किया तो ऐसी डायग्राम, और सेंटर में अगर तो ये रहे। यानी हमने अभी ऐसा डिसाइड किया कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो रहेगा असिमेट्रिक कंपाउंड, वो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। राइट साइड में किया तो ऐसी डायग्राम बनेगी, लेफ्ट साइड में किया तो ऐसी डायग्राम बनेगी। ठीक है, और यहाँ हम ये ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है, नाउ सी हियर हमको क्या दिख रहा है अभी, this is optical activity. This is nothing but it is called a optical activity. The substance which rotate the PPL on either side, that substance is called a optical active substance, and the property is called a optical activity. ठीक है, and that isomerism is called a optical isomerism. अब ये जो दो डायग्राम्स है, ये दो डायग्राम्स ऑब्जर्व करो, ये कैसे दिख रही है हमको, इसको ऐसा देख रहे हैं आप, इसको ऑब्जर्व करो कि ये जो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की है, दिस इज नथिंग बट दिस बिकम अ मिरर। ये क्या बन गया हमारा, मिरर बन गया है, बन गया मिरर। और ये मिरर के सामने अगर हमने ये ऐसी डायग्राम रखी जिसका डायरेक्शन ये थोड़ा सा बेंड है ये डायरेक्शन में, तो उसकी हमको इमेज कैसी मिलेगी मिरर में, इस तरह से मिलेगी। यानी ये क्या हो गया, वन इज ओरिजिनल वन एंड सेकंड वन बिकम्स द मिरर इमेज ऑफ दैट। समझ गए कि नहीं, ये मिरर इमेज बन गया। एंड these two images are non-impossible mirror images, non-superimposable mirror images। यानी ये दोनों अगर एक के ऊपर एक रख दिए तो कभी वो कोइंसाइड नहीं होगी, कभी कोइंसाइड नहीं होगी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट these are said to be the non-superimposable mirror images। ये कब होगा, ऐसी इमेजेस कब मिलेंगी, जब हमारे कंपाउंड में जो हमको जो कंपाउंड दिया जाएगा उस कंपाउंड में क्या है, असिमेट्रिक सेंटर है और चिराल कार्बन एटम है। ऐसा अगर होगा तो वो क्या करेगा, दैट कंपाउंड कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। और व्हाट इज माय दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट द सब्सटेंस व्हिच हैविंग द एबिलिटी टू रोटेट द पीपीएल ऑन आइदर साइड, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो ये जो रहेगा ये दोनों हमको ऐसे मिलेगा एंड इट सीम्स लाइक अ मिरर इमेजेस। ये कैसा दिखेगा हमको, मिरर इमेज दिखेगा। यहाँ हमको ये इन्वर्शन मिलेगा ऐसे, एंड वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज सेड टू बी द मिरर इमेजेस। ये मिरर इमेजेस है एंड दिस टू इमेजेस आर सेड टू बी द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कब मिलेगा, व्हेन द गिवन कंपाउंड हैविंग द असिमेट्रिक सेंटर। अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है विच हैविंग द सिमेट्रिक सेंटर, यानी वो सिमेट्रिकल इन नेचर है। जैसे अगर मैंने डस्टर मिरर के सामने रखा तो इसकी इमेज भी डस्टर मिरर में कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। और ये दोनों इमेजेस यानी ओरिजिनल डस्टर एंड उसकी इमेज, ये दोनों कैसे रहेंगी, ओवरलैप होगी, दोनों सेम रहेगी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इमेजेस व्हिच गेट कोइंसाइड विद ईच अदर of the symmetrical compound or symmetrical object that are said to be the superimposable mirror images। वो दोनों सेम हैं। जैसे अगर मैंने ये हैंड मैंने मिरर के सामने रखा तो ये अगर इसके सामने मिरर है, कंसिडर दैट, और ये मैंने हैंड रखा था, अभी आपको कैसे दिख रहा है, आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में आपको ये क्या दिख रहा है, दैट इज द थंब, और राइट साइड में ये स्मॉल फिंगर दिख रहा है।
लेकिन जब आप इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, आपके राइट साइड में ये ऐसे दिखेगा। ये देखो, ये ऐसी इमेज बनेगी, बीच में ऐसा कंसीडर करो कि दैट वी कैन से दैट मिरर इज देयर, और इसकी इमेज ऐसी मिलेगी। देखो कैसा हो गया, लेफ्ट राइट चेंज हो गया। एंड these are nothing but we can say that this is nothing but this is called, these two are said to be the non superimposable mirror images। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। ऐसा अगर मिल गया तो दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव इन नेचर, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, समझ गए, ये रहेगा। अब यही हम यहाँ डिसाइड करेंगे। देखो ये अगर कंपाउंड हमने मिरर के सामने रखा तो क्या होगा, ये हमारा मिरर है, इसके सामने ये कंपाउंड रखा हमने, H कार्बन Cl then CH3 and then CH2CH3, and you already discussed this is called a chiral carbon atom, asymmetric carbon atom, asymmetric center। जब इसको हम मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर में इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसमें कोई चेंज आएगा, टॉप बॉटम कोई चेंज आएगा, यानी CH2 CH3 ऊपर जाएगा और CH3 नीचे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कार्बन एटम और ये टॉप वाला CH3 एंड बॉटम वाला CH2 CH3, दिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम। चेंज कहाँ आएगा, ये जो Cl यहाँ राइट साइड में है, नाउ इट बिकम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, इट मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड। सी these are called the mirror images, और ये कैसा है, these are called the non superimposable mirror images। अब देखो non superimposable mirror image means इसके ऊपर अगर मैंने ये कंपाउंड रखा, इसकी इमेज रखी, तो दोनों कोइंसाइड होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल चेंजेस है, लेफ्ट राइट चेंज है। सो वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। और क्या कंडीशन है हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, द कंपाउंड मस्ट कंटेन्स द असिमेट्रिक सेंटर। अब यहाँ देखेंगे कि पीपीएल को अगर सब्सटेंस राइट साइड या लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कोई सब्सटेंस इसको रोटेट नहीं करेगा, राइट साइड में भी नहीं करेगा और लेफ्ट साइड में, सब्सटेंस which are unable to rotate the PPL on either side, that substance is said to be the optically inactive in nature. That substance is called optical inactive, optical active and optical inactive। rotate किया तो optical active, नहीं किया तो optical inactive, इस तरह से वो रहेगा। This is nothing but this is called the optical activity। अब देखो यहाँ मैंने जो डायग्राम बनाई है, द सब्सटेंस, इसके ऊपर से दो, रोटेशन के ऊपर से दो पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द सब्सटेंस व्हिच रोटेट द पीपीएल ऑन राइट हैंड साइड। आरएचएस में जो रोटेट करेगा, द सब्सटेंस व्हिच रोटेट द पीपीएल ऑन राइट हैंड साइड, दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी द डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस। It is said to be the dextro-rotatory substance। It is denoted by, either we can represent by the D or the positive sign in a bracket। These are used to represent the dextro-rotatory substance। यानी अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन राइट हैंड साइड में अगर वो चेंज करेंगे पीपीएल को, तो we can say that this is nothing but called the dextro-rotatory substance। The substance which rotate the PPL on right hand side is said to be the dextro-rotatory substance। It is denoted by small d and a positive sign। The substance which rotate the PPL on left hand side is called the leo-rotatory। It's called a leo-rotatory। It is denoted by a small l or the minus sign in a bracket। So according to that rotation, we get the two type of compound। Optical active substance contains exist in two form। One is called the dextro-rotatory, second is said to be the leo-rotatory। So dextro-rotatory, leo-rotatory, right side में रहेगा तो dextro, left side में रहेगा तो leo। ठीक है, अब हम इसका मिक्सचर डिस्कस करेंगे।
मिक्सचर। अब आपको ऑब्जर्व से डायग्राम से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने नियर अबाउट ये जो एंगल है दोनों सेम निकाले। जिस एंगल से वो राइट साइड में रोटेट हो रहा है उसी एंगल से वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है। इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टू कंपाउंड कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लियो, दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी एंगल ऑफ रोटेशन सेम रहेगा बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायरेक्शन इज डिफरेंट, एंगल ऑफ रोटेशन सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन उनका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यानी मान लो ये अगर 45 डिग्री से अगर राइट साइड में चेंज होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो लियो रोटेटरी भी 45 एंगल से ही चेंज होगा, लेकिन दोनों में क्या फर्क रहेगा, डायरेक्शन इज डिफरेंट। देखो ये ऐसे दिखेगा, डायरेक्शन इज, यू जस्ट ऑब्जर्व माय हैंड्स, हैंड्स देखो दोनों का डायरेक्शन अभी सेम एंगल से वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहे हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। अब ऐसे दो कंपाउंड को विच आर हैविंग द सेम एंगल ऑफ रोटेशन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर इन दोनों कंपाउंड को हमने मिक्स किया, इफ द डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस and a liyo rotating substance having the same magnitudes but opposite in direction are mixed with each other, वो जो कंपाउंड मिलेगा that compound is called a racemic mixture. It is also known as a racemic mixture and the second name to this is called a racemic modification. Racemic modification. अब कैसे होगा, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर अ रेसिमिक मिक्सचर। नाउ ऑब्जर्व दैट ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है एंड लियो रोटेटरी है, बोथ आर ऑप्टिकल एक्टिव इन नेचर, क्योंकि वो पीपीएल को रोटेट कर रहे हैं। हमारी कंडीशन क्या है कि सब्सटेंस ने पीपीएल को रोटेट करना चाहिए, एक तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। अगर वो करेगा तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। तो हमारे ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, क्यों, एक पीपीएल को रोटेट करता है राइट साइड में, एक पीपीएल को रोटेट करता है लेफ्ट साइड में। इन बोथ द केसेस बोथ दिस कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव इन नेचर। लेकिन इनका जो मिक्सचर रहेगा, द इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ दिस टू कंपाउंड कॉल्ड द डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी सब्सटेंस, व्हेन दे मिक्स, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड द रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। अब इसका हम ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी में क्या है, एंगल ऑफ रोटेशंस आर सेम बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। आप मुझे बताओ कि ये हमारा पीपीएल है, ये हमारा पीपीएल। अब मैंने इसको डेक्स्ट्रो के लिए क्या किया, मेरे राइट साइड में चेंज किया तो इट बिकम्स अ डेक्स्ट्रो, फिर से ये हाल है, और फिर से मैंने लेफ्ट साइड में चेंज किया, मेरे लेफ्ट साइड में इट बिकम्स अ लियो रोटेटरी। आपके लिए अपोजिट रहेगा, समझ गए। ये कैसे हो गया, दिस इज द डेक्स्ट्रो जो आपके लिए लियो रहेगा एंड दिस इज द लियो जो आपके लिए डेक्स्ट्रो है। समझ गए। अब देखो कैसे रहेगा, जो डायरेक्शन से, जो एंगल से यहाँ रोटेट हो रहा है उसी एंगल से ये यहाँ रोटेट हो रहा है। इसका मतलब जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देयर डायरेक्शन और देयर एंगल ऑफ रोटेशन गेट कैंसल, इसीलिए द पीपीएल कम्स ऑन द ओरिजिनल पोजीशन, कम्स ऑन द ओरिजिनल पोजीशन। समझ गए। जिस डायरेक्शन से, जिस डिस्टेंस से और जिस एंगल से वो राइट साइड में जा रहा है उसी एंगल से वो लेफ्ट साइड में जा रहा है लियो में, तो इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, कैंसिल होंगे। इसीलिए ये जो हमारा ऑप्टेन मिक्सचर है कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। ये कैसे रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। समझ गए, ये रहेगा। सो वन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो, अनदर इज कॉल्ड लियो, देयर मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर और ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। अब हम डिस्कस करेंगे इनैंशियोमर्स, और टू डिस्कस द इनैंशियोमर्स। अभी जो मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो एक कंपाउंड लिया था, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज Cl, दिस इज CH3, दिस इज कॉल्ड CH2CH3, and when this compound put in front of the mirror we get this type of image।
ये देखो मिरर इमेज बनते और ये दो इमेजेस कैसे बताए मैंने, दीज आर द नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। समझ गए। अब एक राइट साइड में चेंज हुआ तो एक रहेगा डेक्स्ट्रो, एक रहेगा लियो। सी these two non super impossible mirror images, these two forms are said to be the enantiomers. These are called the enantiomers. Enantiomers or optical antipodes, तीन नाम है enantiomers, enantiomorphs, enantiomers, enantiomorphs. Morphs or mers means forms, and last is called optical antipodes, having the same meaning, antipodes. ठीक है, ये रहे। तो these two non super impossible mirror images are nothing but called the enantiomers. अब हम ये डिसाइड करेंगे कि एक कंपाउंड कितनी इनैंशियोमर दे सकता है, कितने ऐसे ऑप्टिकल फॉर्म्स या आइसोमर्स दे सकता है। These are optical isomers. In routine word we can say that these are the optical isomers. One is called a dextro, one is called a leo. समझ गए। ये डेक्स्ट्रो है तो ये लियो बनेगा, ये डेक्स्ट्रो है तो ये लियो बनेगा। समझ गए, ऐसे रहता है। हम ऑब्जर्वेशन की अगर ऑब्जर्व की डायरेक्शन अगर चेंज किया तो उसका मीनिंग भी चेंज होगा। नो सी है। अब यहाँ कैसे होगा, हम डिस्कस कर रहे हैं, that is the compound contains how many enantiomers, it depending upon the number of asymmetric centers, या चिराल कार्बन एटम कितना है उसके ऊपर से रहेगा। ठीक है, जैसे उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 to the power n नंबर ऑफ enantiomers। अगर हमको कैलकुलेट करना है कि वो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा तो इन दैट केस हमको ये फॉर्मूला यूज करना है 2 to the power n। N stands for number of chiral carbon atom और asymmetric center। अब ये जो हमारा गिवन कंपाउंड है 2-chlorobutane, इसमें कैसा है, in case of the 2-chlorobutane that n equals to 1, क्योंकि एक ही asymmetric कार्बन एटम है, and that's why 2 to the power n means 2 to the power 1 means 2, and hence it contains the 2 enantiomers, यानी पेयर ऑफ enantiomer, एक रहेगा डेक्स्ट्रो, एक रहेगा लियो। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे हम। इन दैट केस दैट इज ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कंटेन्स द 4 asymmetric center और asymmetric कार्बन एटम, यानी it becomes a 2 to the power 4. 2 to the power 4 means 16, बराबर है। यानी 16 पेयर ऑफ enantiomers रहेंगे, यानी उसमें 8 क्या रहेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 8 क्या रहेगा लियो रोटेटरी। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन रहेगा। दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड द enantiomers। एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे एंड देन विल स्टॉप हियर। एक रहेगा हमको ये डिस्कस करना है, दिस इज कॉल्ड विच, दिस इज नथिंग बट एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एंड सेकंड इज कॉल्ड वेज फॉर्मूला। अब कोई भी कंपाउंड अगर हमने कंसिडर किया, जैसे अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और वेज फार्मूला से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ऑलवेज द कंपाउंड इज थ्री डायमेंशनल इन नेचर, यानी ये 4 बॉन्ड्स है वो दिखने के लिए आइडेंटिकल दिख रहे हैं बिकॉज वी आर ड्रॉन इन अ 2 डायमेंशनल एज ए 2 डायमेंशनल फिगर। लेकिन एक्चुअली कैसे रहेंगे, आउट ऑफ दैट 2 बॉन्ड्स आर ऑन इन अ प्लेन ऑफ अ कंपाउंड एंड वन अबव एंड वन बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ये 2 फार्मूले यूज करना है कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। जैसे अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला,
so it becomes the CH3, CH2 and CH3, and this is called H and this is the C. See, ये जो क्रॉस है that represents a carbon atom, and क्रॉस से it is also known as a cross formula. Second name to that is cross formula. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस, और वो जो एटम्स है दैट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड्स अपीयर अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, अबोव द मॉलिक्यूल्स. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अबोव द मॉलिक्यूल्स. ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड्स व्हिच आर अबोव द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल. और ये वो जो वर्टिकल लाइंस वाले वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? द बॉन्ड्स व्हिच आर बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल. समझिए, ये अगर प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है तो ये बॉन्ड्स अबोव द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल हो गए एंड दिस इज बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल. लेकिन ये कैसे रहेगा? इन अ प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल. तो दिस इज कॉल्ड अ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. वेज फार्मूले में क्या होता है? इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो वेज फार्मूले में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दैट ये हमारा कार्बन एटम रहेगा, समझ गए? और अबोव द एंड बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे इन द प्लेन है तो इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे दैट H एंड Cl. दिस इज इन ए लाइन व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट. ये अगर थिक लाइन अगर हमने यूज की नॉर्मल लाइन तो दैट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल. अबोव द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है तो हमको ये ऐसा शेडेड पोर्शन वाला बॉन्ड लेना है. दिस इज अबोव द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल. और इसको अलग वे से भी मैं बताता हूँ. और अगर हम इसको वैकेंट या एम्प्टी या हॉलो अगर ड्रॉ करेंगे तो इट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड वेज फॉर्मूला. ये रहेगा हाइड्रोजन, दिस इज Cl एंड दिस इज CH3 and this is CH2 CH2. So this is the Fisher projection formula and the Wesch formula. So these are used to locate the bonds which are present in the plane of molecule, above the plane of molecule and below the plane of molecule. So we can say that this is all about the optical isomerism. So today we will discuss the optical isomerism, ordinary light, plane polarized light, chiral carbon atom or chiral carbon atom or asymmetric carbon atom, optical activity, dextro and neurotentary, racemic mixture, racemic modification, and last enantiomorphs or enantio or optical antipodes. और ये दो फॉर्मूले, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला which is also known as a cross formula, and last is called a Wesch formula. So we will stop here. In the next period we will discuss about the physical and chemical properties. So thank you.